انسان بنانے کا اعلان کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مخلوق زمین پر فساد کرے گی، لیکن اللہ نے ایک ایسا راز بتایا جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ آج میں آپ کو وہ پوری کہانی سناتا ہوں، وہ کہانی جو ہماری اپنی کہانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، پہلے انسان کی کہانی۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ آج بھی ہماری زندگی سے جڑی ہے۔ اس میں ایسے سبق ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بالکل شروع سے، جب کائنات میں انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ لاکھوں سال پہلے کی بات ہے، نہیں کروڑوں سال پہلے کی۔ دراصل وقت کا کوئی حساب نہیں تھا۔ کائنات موجود تھی، آسمان تھے، ستارے تھے، چاند سورج تھے، زمین بھی موجود تھی، لیکن یہ زمین خالی تھی۔ یہاں پہاڑ تھے، سمندر تھے، جنگل تھے، لیکن انسان نہیں تھا۔ اللہ کی دوسری مخلوقات موجود تھیں، فرشتے تھے جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے تھے، نہ تھکتے تھے، نہ سوتے تھے۔ ان کا کام صرف اللہ کے احکامات پر عمل کرنا تھا۔ جنات بھی موجود تھے، وہ آگ سے بنائے گئے تھے۔ پھر ایک دن اللہ نے ایک اعلان کیا۔ یہ اعلان فرشتوں کے سامنے تھا۔ اللہ نے فرمایا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ لفظ سن کر فرشتے حیران ہو گئے۔ خلیفہ یعنی نائب، یعنی کوئی ایسی مخلوق جو زمین پر اللہ کی نمائندگی کرے۔ فرشتوں نے سوچا، انہوں نے غور کیا، پھر انہوں نے ادب سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو فساد کرے، جو خون خرابہ کرے؟ ہم تو یہاں موجود ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو پھر اس نئی مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال بہت اہم تھا۔ فرشتوں کو کچھ علم تھا جو انہیں پریشان کر رہا تھا۔ شاید انہوں نے جنات کو دیکھا تھا۔ جنات زمین پر فساد کر چکے تھے، ان میں سے کچھ نے بغاوت کی تھی، خون خرابہ کیا تھا۔ فرشتوں نے سوچا کہ اگر یہ نئی مخلوق بھی ایسی ہوئی تو کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کا جواب بہت گہرا تھا۔ اللہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک مختصر جملہ تھا، لیکن اس میں بہت گہرائی تھی۔ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ انسان کیا کرے گا، انسان میں کیا خوبیاں ہوں گی، اور اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ انسان میں کیا کمزوریاں ہوں گی۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا۔ اب اللہ نے انسان بنانے کا کام شروع کیا، لیکن انسان کو کس چیز سے بنایا جائے؟ اللہ نے مٹی کا انتخاب کیا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ فرشتے نور سے بنے تھے، جنات آگ سے بنے تھے، اور انسان کو مٹی سے بنایا گیا۔ مٹی وہ چیز ہے جو زمین پر سب سے عام ہے۔ مٹی عاجز ہے، مٹی نرم ہے، مٹی میں تکبر نہیں ہوتا، اور یہی خوبی اللہ انسان میں دیکھنا چاہتا تھا، عاجزی، انکساری۔ اب سوال یہ تھا کہ مٹی کہاں سے لی جائے؟ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی لاؤ۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ فرشتے زمین پر آئے، انہوں نے مختلف جگہوں سے مٹی جمع کی۔ کچھ سرخ مٹی تھی، کچھ سفید تھی، کچھ کالی تھی، کچھ پیلی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسانوں کے رنگ مختلف ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا، کوئی گندمی۔ سب کی اصل ایک ہے، سب مٹی سے بنے ہیں، بس مٹی کا رنگ مختلف تھا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ مٹی جمع ہو گئی۔ اب اللہ نے اس مٹی کو پانی کے ساتھ ملایا۔ مٹی اور پانی مل کر گارا بن گئے۔ پھر اس گارے کو گوندھا گیا۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کی شکل بنائی۔ یہ بات قرآن میں مووڈ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے انسان بنایا۔ یہ انسان کی عزت ہے۔ اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے انسان کو تخلیق کیا۔ ایک مکمل انسانی شکل بنائی گئی۔ سر تھا، بال تھے، آنکھیں تھیں، ناک تھی، منہ تھا، کان تھے، گردن تھی، سینہ تھا، پیٹ تھا، ہاتھ تھے، انگلیاں تھیں، پاؤں تھے، انگلیاں تھیں۔ لیکن یہ ابھی صرف مٹی کا پتلا تھا، اس میں زندگی نہیں تھی، یہ بے جان تھا۔ اللہ نے اسے ایسے ہی رہنے دیا۔ کچھ وقت گزرا، کتنا وقت ہمیں نہیں معلوم، شاید دن، شاید مہینے، شاید سال۔ وقت کا کوئی حساب نہیں تھا۔
ये मिट्टी का पतला वहीं पड़ा रहा। आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी सूखने लगी। पहले वो गीली थी, फिर नम थी, फिर खुश्क हो गई। जब मिट्टी मुकम्मल तौर पर खुश्क हुई तो वो सख्त हो गई। अब अगर उसे कहीं से थपथपाया जाए तो आवाज आती थी। कुरान में उसे सलसाल कहा गया है। ये मिट्टी का पतला एक खास जगह पर था। फरिश्ते उसे देखते थे, वो हैरान होते थे। वो सोचते थे कि अल्लाह इससे क्या बनाना चाहता है। वो आते और उसे गौर से देखते। ये कैसी अजीब मखलूक है, हम तो नूर से बने हैं, ये मिट्टी से बना है। इब्लीस भी वहां मौजूद था। इब्लीस कौन था? इब्लीस जिन्नात में से था, लेकिन वो बहुत खास था। उसने बहुत ज़्यादा इबादत की थी, इतनी इबादत कि उसे फरिश्तों के दरमियान जगह मिल गई थी। वो फरिश्तों के साथ रहता था, फरिश्तों के साथ अल्लाह की इबादत करता था। इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था। वो बहुत आलिम था, बहुत आबिद था। फरिश्ते उसकी इज्जत करते थे, लेकिन उसके दिल में एक बीमारी थी जो अभी जाहिर नहीं हुई थी। वो बीमारी तकब्बुर की थी। जब इब्लीस ने उस मिट्टी के पतले को देखा तो उसने उसे गौर से देखा। उसने उसके गिर्द चक्कर लगाए, उसने उसे छुआ, उसने उसमें झांकने की कोशिश की, उसके अंदर देखा। फिर उसने सोचा, ये तो बस मिट्टी का बना है, खाली है अंदर से, कमजोर है, मैं आग से बना हूं। ये ख्याल इब्लीस के दिल में बैठ गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। वो बस अपने दिल में ये सोचता रहा। उसे लगा कि वो उस नई मखलूक से बेहतर है। उसका तकब्बुर बढ़ता गया। लेकिन अभी उसका इम्तिहान नहीं आया था। इम्तिहान आने वाला था और वो उस इम्तिहान में नाकाम होने वाला था। इधर फरिश्ते भी हैरान थे। वो सोच रहे थे कि अल्लाह की क्या हिकमत है, ये मखलूक हमसे कैसे बेहतर होगी। लेकिन फरिश्तों के दिल में तकब्बुर नहीं था, उनके दिल में सिर्फ तजस्सुस था। वो समझना चाहते थे। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने उस मिट्टी के पतले में रूह फूंकने का फैसला किया। ये एक बहुत अहम लम्हा था, कायनात की तारीख का एक अहम मोड़। अल्लाह ने अपनी रूह उस जिस्म में फूंकी। रूह ऊपर से दाखिल हुई, सर से, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ। जैसे जैसे रूह जिस्म में दाखिल होती गई, वो हिस्सा जिंदा होता गया। सबसे पहले सर में रूह आई, आंखें खुली, पहली बार देखा, नजर आया। कान में रूह आई, सुनना शुरू हुआ। नाक में आई, सूंघना शुरू हुआ। मुंह में आई, जायका महसूस हुआ। फिर रूह गर्दन में आई, सीने में आई, दिल धड़कने लगा। फेफड़ों में आई, सांस चलने लगी। पहली सांस, अंदर बाहर, जिंदगी की पहली निशानी। फिर पेट में रूह आई, जन्नत के फल नजर आए जो सामने थे। हजरत आदम ने उठने की कोशिश की, लेकिन अभी रूह पैरों तक नहीं पहुंची थी। वो जल्दी में थे। इंसान की फितरत है कि वो जल्दबाज होता है। कुरान में आता है कि इंसान जल्दबाज पैदा हुआ है। फिर रूह टांगों में आई, पांव में आई। अब मुकम्मल जिस्म जिंदा हो गया था। हजरत आदम खड़े हुए। पहली बार खड़े होना, पहली बार चलना। उन्होंने कदम उठाया, चले। फिर छींक आई, उन्होंने छींका। अल्लाह ने उन्हें सिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जवाब दिया यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। ये पहली बातचीत थी इंसान और अल्लाह के दरमियान। हजरत आदम अब मुकम्मल तौर पर जिंदा थे। वो देख सकते थे, सुन सकते थे, बोल सकते थे, चल सकते थे, सोच सकते थे, महसूस कर सकते थे। फरिश्ते ये सब देख रहे थे। वो हैरान थे, ये कैसी मखलूक है, ये कितनी मुख्तलिफ है। इब्लीस भी देख रहा था, लेकिन उसके दिल में हसद था, उसके दिल में तकब्बुर था। अब अल्लाह ने हजरत आदम को कुछ सिखाना शुरू किया। अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया। क्या इल्म दिया? चीज़ों के नाम सिखाए, हर चीज़ का नाम। ये क्या है, वो क्या है, ये किस काम आती है, इसकी क्या खुसूसियात हैं। ये इल्म बहुत वसी था। अल्लाह ने उन्हें वो इल्म दिया जो किसी को नहीं दिया था, न फरिश्तों को न जिन्नात को। अब अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाया। अल्लाह ने उनके सामने मुख्तलिफ चीज़ें रखीं। फिर फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। फरिश्ते सोचने लगे। उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानते थे। उन्हें वो इल्म नहीं दिया गया था।
फरिश्ते बहुत आजिज थे। उन्होंने कहा, सुब्हानका, ए अल्लाह तू पाक है, हम तो बस इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है। तू ही सब कुछ जानने वाला है, तू ही हिकमत वाला है। हम तेरे बंदे हैं, हम महदूद हैं, सिर्फ तू ही लामहदूद इल्म रखता है। ये फरिश्तों की आजिज़ी थी, ये उनकी खूबसूरती थी। अब अल्लाह ने हज़रत आदम से फरमाया, ए आदम, उन्हें इन चीज़ों के नाम बताओ। हज़रत आदम ने एक एक चीज़ की तरफ इशारा किया और उसका नाम बताया, उसकी खुसूसियात बताएं, उसके फ़वाइद बताए। फरिश्ते हैरान थे, ये कैसे मुमकिन है? ये नई मखलूक इतना इल्म कहाँ से ले आई? अब उन्हें समझ आया, उन्हें अल्लाह की हिकमत समझ आई। इंसान में एक ख़ास सलाहियत है, इंसान सीख सकता है, इंसान इल्म हासिल कर सकता है, इंसान सोच सकता है, इंसान गौर व फिक्र कर सकता है। ये फरिश्तों में नहीं था। फरिश्ते जो हुक्म मिले वो करें, लेकिन इंसान सोचता है, समझता है, फिर फैसला करता है। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। मैं आसमानों और ज़मीन की छुपी बातें जानता हूं। मैं जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो, और मैं वो भी जानता हूं जो तुम छुपाते हो। ये आखिरी जुमला बहुत अहम था। अल्लाह जानता था कि इब्लीस के दिल में क्या है। अल्लाह जानता था कि इसके दिल में तकब्बुर है, लेकिन अभी अल्लाह ने जाहिर नहीं किया, अभी वक्त नहीं आया था। फरिश्ते समझ गए, उन्हें एहसास हुआ कि इंसान वाकई ख़ास है। अल्लाह ने उसे एक मकसद के लिए बनाया है। अब अगला इम्तिहान आने वाला था। अल्लाह ने हुक्म दिया। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। ये हुक्म तमाम फरिश्तों के लिए था और इब्लीस के लिए भी। ये सजदा कैसा था? ये इबादत का सजदा नहीं था। इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये ताज़ीम का सजदा था, एहतराम का सजदा था। अल्लाह के हुक्म पर आदम को सजदा करना था। ये दरअसल अल्लाह की इताअत थी, अल्लाह के हुक्म की तामील थी। तमाम फरिश्तों ने फौरी तौर पर सजदा किया। उन्होंने एक लम्हे की भी देर नहीं की। हुक्म मिला और वो झुक गए। ये उनकी फितरत थी। लेकिन एक नहीं झुका, सब झुक गए, लेकिन एक खड़ा रहा। वो इब्लीस था। उसने इनकार कर दिया, उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने रोका? मैंने हुक्म दिया था कि सजदा करो, तूने क्यों नहीं किया? इब्लीस ने जवाब दिया, और ये जवाब बहुत ख़तरनाक था। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। आग मिट्टी से बेहतर है, तो मैं इससे बेहतर हूँ। मैं इसे सजदा क्यों करूँ? ये तकब्बुर का जवाब था, ये गुरूर का जवाब था। अल्लाह का हुक्म और फौरी इताअत, ये इम्तिहान सबके लिए था। इब्लीस ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने अल्लाह के हुक्म को रद्द कर दिया। उसने अपनी राय को अल्लाह के हुक्म से ऊपर रखा। उसने सोचा कि मैं बेहतर समझता हूँ। उसने अपने आप को अल्लाह से ज़्यादा अक्लमंद समझा। ये सबसे बड़ा गुनाह था, तकब्बुर। अल्लाह तकब्बुर को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने फौरी तौर पर फैसला सुनाया। अल्लाह ने कहा, तू यहाँ से निकल जा, तुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। तू जलील है, तू मरदूद है, यहाँ से निकल जा। इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया, उसका मकाम ख़त्म कर दिया गया। इब्लीस बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने तौबा नहीं की, उसने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि उसने मज़ीद सरकशी की। उसने अल्लाह से कहा, मुझे मोहलत दे, मुझे क़यामत के दिन तक जिंदा रहने दे। अल्लाह ने कहा, अच्छा, तुझे मोहलत दी जाती है। इब्लीस ने सोचा कि अब मैं इंतकाम लूँगा। उसने कहा, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, तो अब मैं भी इंसानों को गुमराह करूँगा। मैं उनके रास्ते में बैठूँगा, मैं उनके आगे से आऊँगा, उनके पीछे से आऊँगा, उनके दाएं से आऊँगा, उनके बाएं से आऊँगा। ये ऐलान जंग था। इब्लीस ने इंसान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, जा यहाँ से जलील और मरदूद होकर। जो तेरी पैरवी करेगा, मैं जहन्नम को तुम सब से भर दूंगा, लेकिन जो मेरी पैरवी करेगा, जो मेरी इताअत करेगा, जो मुझ पर ईमान रखेगा, उसे तू गुमराह नहीं कर सकेगा।
یہ ابلیس کی کہانی تھی۔ یہ شیطان کی